हेलो एस्परेंट्स। तो चलिए आज की ताज़ा खबरें देखते हैं। मायूष तंबूश, चलो ठीक है। आज है 7 जनवरी। तो हम मेन पेज पे आते हैं सीधा। देखते क्या है आज की इसमें। वाइड डिसकवर द हरप्पन सिस्टम, मिस्ट्री ऑफ इंडस स्क्रिप्ट, बस्ट ऑफ हिडन स्क्रिप्ट है। डिफिकल्ट तो बहुत है, अभी तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए, शायद सुपर कंप्यूटर्स कर पाए। पहले हम ये देखते हैं। हिंदुत्व वॉज अम्बेडकर पजल, हिंदू यूनिटी सावरकर वॉज अपोजिट व्हाट बाला साहब टॉट। नहीं। A stronger STEM, more women in IIT is a reason for cheer. It is important to ensure that passage from classroom to workplace remains unhindered. ठीक है, देखना पड़ेगा। वुमेन एम्पावरमेंट भी है, GS1 एम्प्लॉयमेंट भी है, GS3 रीडिंग द फॉल। Stock markets are weighed down by global domestic factors for investors to assess positions. More clarity is needed. Budget and the firm uniform taxation across agri markets. Research funding can turn sector around. देखना पड़ेगा। एग्रीकल्चर है। The comeback Golden Globes is doing what it does best, getting the party going. How not to criticize Nehru? MSP guarantee is feasible. Those opposing it paint an unfavorable picture of its financial burden. ओके, ये पिछले आर्टिकल को काउंटर करने के लिए था कि एमएसपी की है या नहीं। तो चांसेस कम है इस पर फिर भी हम देख सकते हैं वैसे। होम लाइज इन बिटवीन इन ग्वालियर एज। मिस्ट्री मिस्ट्री रहने दो। HMP द ओल्ड न्यू वायरस दैट हैज इन्फेक्टेड टू इन्फेंट्स इन बेंगलुरु, काफी इंपॉर्टेंट है, ये देखना पड़ेगा। काफी चर्चे में। क्लू ऑन व्हाई न्यू मेमोरीज डू नॉट ओवरराइट ओल्ड वंस। ठीक है। ये क्या है? गशिंग सबटेरियन वाटर फ्लोड लार्ज एरिया, और इज कन्फाइंड अंडर प्रेशर बिटवीन लेयर्स ऑफ इम्पेरेबल रॉक्स, गशेस फ्लोट ऑन इट्स ओन। क्या है ये? ठीक है, ये छोड़ दीजिए। तो देखते हैं, MSP वाला देखेंगे, बजट वाला देखेंगे, और स्ट्रॉन्गर स्टेम देखेंगे। स्टेम क्या है मुझे बताना। ऊपर से नीचे आएंगे हम, चलो। Awards are like applause and every actor likes to hear applause. Every actor है, सॉरी, every actor है। चलो ठीक है, सही है। अवार्ड्स खरीदे भी जा सकते हैं। अभी अवार्ड्स की अहमियत नहीं बची है। फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए, बाकी इधर तो अवार्ड्स, भारत रत्न वगैरह तो ऑब्वियस है। आपकी एक्सेप्शनल कामगिरी चाहिए तब कुछ हो जाएगा। द इंक्रीजिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी मार्क्स अ पिवटल मोमेंट इन द जर्नी टुवर्ड्स ग्रेटर इंक्लूसिविटी, gender equity in India's premier institutions of higher education. It is also welcome affirmation of the larger and irreversible shift in society that top-down institutional reforms can help deeper and wider. तो ये बोल रहे हैं कि भाई जो रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का वो काफी बढ़ गया है IITs में, जो कि अच्छी बात है। ये बड़ी अच्छी बात कही है, ठीक है। द डाटा obtained by this newspaper under the Right to Information Act has revealed that 6 years since the implementation of supernumeracy quota of 20% for women in undergraduate engineering programs, in which extra seats were created instead of reserving them within the existing pool, IITs were witnessing a significant surge in female students. At IIT Kanpur, the number of women rose from 908 से 2124। मतलब क्या खतरनाक राइज है। ऑलमोस्ट 60-70, मतलब 160, 120, 100 बोला तो एक 1800, 120, 130% बढ़ गया है। IIT रुड़की 176% जंप। IIT इन चेन्नई, मुंबई, गुवाहाटी भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब जंप्स काफ़ी ज़्यादा बड़े देखने मिले हैं। Upsurge reflects a positive correlation between individual ambition and availability of opportunity that is a result of good faith affirmative action. Initiating 2018, the quota in IT goes beyond numbers in reshaping an academic space that has historically been male dominated. There have been infrastructure upgrades in the form of more hostels, washrooms, and recreational facilities for women. Some campuses have a special open door policy for female aspirants and their parents to learn about campus life. These are all welcome departures from a masculine imagination of the classroom where women were expected to man up or ship out, where safeguards against everyday sexism were few and far between. The change challenges the old narrative that STEM is a field for men and signals a future where women's voices, ideas, and innovations will be indispensable in shaping the country's intellectual and technological future. Given that of total enrolled students in engineering and technology, according to the All India Survey on AISHE for 2021, women still comprise only 11 lakh, while 27 lakh are men in undergraduate programs. It is crucial to bridge the gap. देखो,
अभी इसमें क्या बोला है इन्होंने कि काफी हद तक जो इतना ये कोटा बढ़ाया है इन्होंने वुमेन के लिए, तो उसमें काफी ज्यादा हद तक इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा अच्छा अपग्रेड किया है। जो वॉशरूम्स हो गए, हॉस्टल्स हो गए, जो भी फैसिलिटीज रहती है वुमेन के लिए, वो अच्छे से किया है उन्होंने। इवन स्पेशल ओपन डोर पॉलिसी भी किया है। मतलब क्या है, जो भी फीमेल एस्पिरेंट्स है या फिर उनके पेरेंट्स है, तो उनको कैंपस के बारे में सब मालूमात होनी चाहिए। और पहले तो जो स्टेम फील्ड थी, साइंस टेक्नोलॉजी और मेडिसिन वगैरह, तो उसमें ज़्यादातर तो मेन थे और वुमेन के जो वॉइस थे वो दबाए जा रहे थे पहले, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी टोटल एनरोल्ड स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं। वैसे देखा जाए तो 11 लाख है वुमेन और 27 लाख है मेन, पर ये जो गैप है अभी वो फिल करना है। But as with medicine, where for every 100 men, there were 100 women enrolled in medical colleges in India in 2020-21, the increased presence of women in IITs can only be counted as a job well begun. It underscores the need for greater systemic support to ensure that progress of women does not stall, that the passage from classwork to workplace remains unhindered. देखो, आपने तो एजुकेशन फील्ड में बना लिया है, पर अभी क्लासरूम से जो वर्क प्लेस का जो जर्नी है वहां पर भी ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए। वो अच्छे से होना चाहिए, इनका ये मानना है। The focus must now shift to ensuring that the IITs continue to create an environment where women can thrive free from biases and are equipped with all the support resources they need to succeed. The Indian Human Development Survey by the University of Maryland and National Council of Applied Economic Research that has tracked changes in the lives of Indian households between 2004 and 24 shows that despite ongoing transformations in their lives, one area where women continue to be let down is in terms of economic opportunities. With more women poised to enter the workforce, it is time to ensure that gender neutral policies, mentorship, and a culture of inclusivity allow them to realize their potential more fully. तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो ये ऐसा ही चलता रहना चाहिए और आगे जाके जो भी इंडियन हाउस होल्ड्स है तो उसमें भी वो चेंजेस लाए। ऐसे जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और बाकी ज़्यादा अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिले वुमेन को। रीडिंग द फॉल नहीं ज़रूरत है। कम बैक, इधर क्या है? एमएसपी गारंटीड। चलो एमएसपी के ऊपर आते, इधर कुछ नहीं था ना। अच्छा, यूनिफॉर्म टैक्सेशन था क्या? चलो ये देखते। बजट एंड द फार्म, चलो फार्म पे देखते। It said that mistakes don't kill us, but persisting with them can be fatal. The government should introspect on why farming seems to be imploding. In the pre-budget discussions on agriculture with finance minister suggested that the government or order an audit of its programs by beneficiaries. The government acknowledges the need, but given the bureaucratic obduracy, this critical audit is bound to get sidestepped. अभी ये बोल रहे कि थोड़ा सा गवर्नमेंट पर बोल रहे कि ये आप जो है थोड़ा साइडलाइन कर रहे हो एग्रीकल्चर का सेक्टर। I have pondered for years as to why the FM should be meeting farmer representatives, especially when the budget allocations are made at the specific request of the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. Most of the suggestions are either repeated annually or have no relevance to the budget, but I must acknowledge the FM's remarkable patience to engage with critics for hours in these consultations with farmers and economists, where invariably representative of agro industry find their way in. तो ये थोड़ा फाइनेंस मिनिस्टर के रिगार्डिंग है कि ये बोल रहे कि भाई इतना जो फार्मर से आप मिल रहे हो रिप्रेजेंटेटिव से, तो उससे कुछ मिलकर मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो रिक्वेस्ट आने वाली हो तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर से आने वाली है। तो उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस तो है नहीं, और जो आप सजेशंस लाते हो, जो भी पॉलिसीज लाते हो, वो तो आइदर रिपीटेड ही रहती है या फिर कोई बजट से तालमेल ही नहीं रखती। ऐसा इनका मानना है, मेरा नहीं। इट वॉज हर्टनिंग टू, अच्छा ये थोड़ा पॉलिटिकल जा रहा है क्या, देखते हैं आगे। It was heartening to learn that Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare met farmers' representatives prior to the budget session, possibly the first Union Minister for Agriculture to do so. The Indian agriculture research system has consistently failed to meet expectations in terms of closing the yield gain gap in crop productivity. Part of the blame is on the lack of funding support and tendency to spread scarce resources thinly over all. अच्छा ठीक है। लास्ट का देखते हैं। ये थोड़ा पॉलिटिकल जा रहा है। द स्टेक्स फॉर इंडिया कुडंट बी हायर स्पेशली इन पास्ट बजट एलोकेशन। अच्छा ठीक है, ये थोड़ा सा क्रिटिसाइज में ही लगे हैं। मुझे लगा कुछ सजेशन देंगे, और ठीक है कोई नहीं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज अ वेलकम, पर अगर आप क्रिटिसाइज ही करते जा रहे हो तो फिर इट इज़ नॉट दैट गुड। क्रिटिसाइज करने के लिए कुछ भी मिल सकता है आपको, पर उसमें क्या सुधार लेना चाहिए उसको दिमाग लगेगा। दोज अपोजिंग इट पेंट एन अनफेस पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल बर्डन, एमएसपी गारंटी इज फिजिबल। अभी ये बोल रहे कि एमएसपी अच्छा है। ये कैसे अच्छा है देखते हैं।
वैसे बहुत सारे हमने आर्टिकल्स देखे एमएसपी पे, फिर भी एक आधा आर्टिकल ये लास्ट रहेगा, उसके बाद में अगर एमएसपी पे कुछ भी आता है तो फिर थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे। थोड़ा अभी लाइन बाय लाइन। अभी ये पूछ रहे कि लीगली गारंटेड है क्या एमएसपी फार्मर्स के लिए। तो यही चल रहा है अभी, इंडेफिनेट फास्ट है, 43rd डे है अभी इनका। जो फार्मर लीडर है जगजीत सिंह दल्लेवाल, तो उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया है कि लीगली बाइंडिंग कर दो एमएसपी। However, the Indian government seems to be no more to consider this demand, notwithstanding the PM's repeated assertion MSP है और रहेगा. The government has not even initiated a dialogue with the protesting farmers. The PM's New Year gift to the farmers a still declaration about continuing crop insurance and subsidy on fertilizer bypasses the MSP. On the contrary, government's recently released draft National Framework for Agriculture Marketing for the next 10 years does not even mention the MSP, let alone consider the legally binding MSP. मतलब एमएसपी निकालने की कोशिश चल रही है, ये ऐसा बोल रही है, और ये बोल रही है कि लीगली बाइंडिंग कर दो, लीगल बैकिंग कर दो एमएसपी को। तो उस पर ही थोड़ा वाद विवाद चल रहा है। इन द मिड्स ऑफ दिस डेडलॉक द फार्मर्स कंटिन्यू टू सफर, टेक मेरिटा एन इंपॉर्टेंट मेजर एग्रीकल्चर मार्केट इन राजस्थान वेयर मूंग इज अ मेजर खरीफ क्रॉप। द ऑफिशियल डिक्लेयर्ड एमएसपी फॉर मूंग इज 8682 per quintal. However, during December 2024, the average price was only 6467. The farmers had to sell at a loss of rupees 2215 per quintal. देख सकते हो कितना, मतलब एमएसपी मिल रहा है मूंग के लिए 8,500, और इनको बेचना पड़ रहा है 2,000 में। कितना डेंजर है, बहुत बिलो एमएसपी है। एक्चुअली एमएसपी का मकसद यही है कि अगर आपको मार्केट में कम मिल रहा है तो एटलीस्ट वो प्राइस तो मिलनी चाहिए। दस टोटल इनकम लॉस्ट बाय फार्मर इन दिस वन मार्केट फॉर दिस वन क्रॉप इन वन मंथ वाज ओवर 10 करोड़। 10 करोड़ से ज्यादा एक महीने में इनका लॉस हुआ है फार्मर्स का। इन द मार्केट एट जालना महाराष्ट्र, तो एवरेज प्राइस ऑफ जवार वॉज रिसीव्ड बाय फार्मर्स इन दिसंबर 2,500 के आसपास, और इनको मिला है 915। मतलब 3,371 मिलना चाहिए था, तो 2,500 ही मिल रहा है, मतलब 915 कम मिल रहे हैं। इवन वैसा ही सभी ऑलमोस्ट अलग अलग क्रॉप्स का ये बोल दिए है। द गवर्नमेंट ऑफिशियली डिक्लेयर्स एमएसपी फॉर 23 क्रॉप्स एवरी ईयर विद अ फैनफेयर दैट मेक्स पब्लिक believe that government has done a great favor to the farmers. In reality, the government does precious little to ensure that farmer get this minimum price. If the government does not take any action when the market price goes below MSP, the word minimum and support become meaningless. आप मिनिमम बोल रहे हो और सपोर्ट नहीं दे रहे हो, तो फिर फायदा ही नहीं ना ये दो शब्द का। तो ऐसा ही बोल रहे क्लियरली एन एमएसपी दैट इज नॉट गारंटेड इज नो एमएसपी। अगर गारंटी नहीं है तो फिर एमएसपी की मतलब कोई एमएसपी नहीं रहा। द फार्मर्स सिंपली वांट द गवर्नमेंट टू रिडीम इट्स प्रोमिसरी नोट। फार्मर्स को यही चाहिए कि भाई आप जो बोल रहे हो वो एटलीस्ट उस पर बने रहो। However, every time the farmers' demand comes up for discussion, an outcry is orchestrated in the mainstream media, portraying it as unreasonable, operationally impossible, or fiscal disaster. Much of this criticism is either directed at an earlier version of this demand that the farmers' movement has grown, or deliberate scaremongering. The demand for legally binding MSP is logically coherent and operationalizable. What is more, the country can afford it. Here is how it can be done. अब ये बोल रहे कि कैसे कर सकते हो आप। Let us begin by getting rid of the idea that the legally binding MSP entails that the government must procure the entire produce of all the crops, or at least those crops that sell below the official MSP. This is neither feasible nor necessary. It is not also not simply a matter of declaring any trade below MSP as illegal and relying on a punitive mechanism. This has been attempted, and such a legal provision by itself does not work. तो आप ये बोल रहे हो कि अगर अभी लीगली बाइंडिंग करना है तो सभी क्रॉप्स जो उगा रहे हो सब लेने की जरूरत नहीं है, और ये फिजिबल भी नहीं है, ना ही नेसेसरी है, ये ऐसे बात कर रहे हैं। The basic principle of legally binding MSP is very simple. Farmer must have a legal entitlement to receive, and the state would have a corresponding legal obligation to ensure to farmers at least a remunerative MSP for all agricultural produce. The point of this definition is that state's obligation is to ensure that farmers receive the statutory price for their produce, not necessarily to purchase the farmer's produce. Correct. Correspondingly, farmers entitlement is received to statutory price respect to। अच्छा ठीक है, ये काफी डिटेल में जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर देख देख सकते हो आप, मेरे हिसाब से ये काफी डिटेलिंग करने लग गए हैं कि ये कॉस्ट है, इतना इतना कॉस्ट के हिसाब से ये निकलना चाहिए। तो हो भी सकता है अगर किया जाए तो अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे बात है। पर एमएसपी इनको ठीक ठाक से नहीं मिल रहा है, तो फिर अगर एमएसपी नहीं रहा तो और डिफिकल्ट हो जाएगा।
HMPV देखते, काफी इंपॉर्टेंट है। At least two cases of human metapneumovirus were detected during routine surveillance of respiratory infections by ICMR. This comes after reports of surge in respiratory infections in China attributed to HMP among other pathogens. There is usually an increase in respiratory infections during winter months owing to poorer immune response and conditions favorable to transmission. एक नया टाइप का वायरस आया है, इन्फेक्शन चाइना से दिखने आ रहे हैं। ये कोई नया वायरस नहीं है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करता है बस। We do see a few cases every year. However, it often doesn't get detected because people do not get tested for it. देखो, ये पुराना ही वायरस है, मतलब ये वायरस भी नहीं बोल सकते, ये पहले एक नहीं हो रहा था, इसलिए इसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, कोई टेस्ट नहीं कर रहा था। Unlike SARS-CoV-2 that caused the COVID-19 pandemic, HMP is not a new virus and was first identified in 2008. The virus is related to avian metapneumovirus that leads to variety of symptoms in different birds. Since its discovery, several studies have detected HMP in patients with respiratory infections around the world. तो ऐसा देखा जाए तो बहुत सारे स्टडीज किया है जब से डिस्कवरी में आया है, और काफ़ी ज़्यादा हद तक पेशेंट्स जो है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के शिकार हुए हैं। इन इंडिया मल्टी सेंटर स्टडी ऑन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बिटवीन 2016-18 एंड HMP in 3.5% of patient samples for context. Influenza was most commonly detected whereas found only 15% सैंपल्स मिल रहे थे, ये तो 3% है, तो ऐसा देखा जाए तो इतना भी ज़्यादा रेट नहीं है, पर फैल सकता है। अदर स्टडी, ठीक है, देयर वाज एन आउटब्रेक ऑफ HMP इन पुडुचेरी बिटवीन नवंबर 2022 से 23 तक। During this period, Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research found the virus 9.6% of the samples. The research found that HMP was more prevalent in children below the age of 1 year. एक साल के बच्चे के, मतलब एक साल तक जो बच्चा है उसको होने के चांसेस ज़्यादा है, वीजिंग सीजर वगैरह आ सकते हैं। ड्यूरिंग द आउटब्रेक, द रिसर्च ऑल्सो आइडेंटिफाइड न्यू lineages of the viruses, highlighting its evolving nature. HMPV is an RNA virus, the likes of which are notorious for mutation. This is the reason surveillance should be maintained and sample tested by research. देखो, ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है क्या? ये पुराना वायरस है, पर ये म्यूटेट होते जा रहा है, और जैसे म्यूटेट होगा तो वो जो भी आप दवाई खा रहे हो उसका ऊपर कुछ असर ही नहीं होगा। अभी सिम्टम्स क्या है इसके? तो कफ आता है, फीवर आता है, रनी नोज, सोर थ्रोट, वीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इट मे समटाइम्स लीड टू मोर सीवियर सिम्टम्स लाइक निमोनिया, निमोनिया तक हो सकता है, लंग इन्फेक्शन, जो एयर सैक्स में जो पानी भर जाता है। इन चिल्ड्रन who get infected for the first time in the elderly and those with a weakened immune system। तो इम्यूनिटी सिस्टम अगर वीक है आपकी, तो इसलिए आप कसरत करें, अच्छा खाए, बाहर का ज़्यादा मत खाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमारी आने वाली है अभी, तो हमने अभी तक पता भी नहीं है। द इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड थ्रू द एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स दैट आर रिलीज्ड व्हेन अ सिक पर्सन coughs or sneezes। इट ऑल्सो बी स्प्रेड व्हेन समवन टचेस सर्फेसेस वेयर द वायरस में हैव सेटल्ड। तो जो भी आप पब्लिक प्लेसेस से, अगर बाहर से आप किधर से हाथ लगा के भी, मतलब इन बाहर से आप घूम के आ रहे हो किधर से, तो एटलीस्ट हाथ धोया करिएगा। This is the reason general precautions such as frequent washing of hands, masking up, maintaining social distance and avoiding crowded places can help। तो यही बात है, आप अच्छे से हाथ धोइए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, क्राउडेड प्लेसेस में जाना बंद करिएगा। द पीपल मस्ट नॉट स्टेप आउट व्हेन द हैव सिम्टम्स सच एज कोफ एंड कोल्ड। तो आपको अगर सर्दी बुखार वगैरह कुछ है तो फिर आप मत जाया करिए, ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। देर इज नो स्पेसिफिक मेडिसिन और वैक्सीन, कोई स्पेसिफिक मेडिसिन और वैक्सीन नहीं है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई आप जाइए ना, को होने का डर ही ना रहे। बस पैरासीटामोल लेते हैं अगर फीवर है तो, पर उससे कुछ होने वाला नहीं। कोई एंटीबायोटिक कंज्यूम करने के बाद कुछ भी ऐसा बिना कंसल्ट किए कोई भी एंटीबायोटिक्स ना ले। हाउ डज गवर्नमेंट कंडक्ट इन्फ्लुएंजा सर्वेलेंस? अभी सर्वेलेंस कैसे कर रही है गवर्नमेंट? 2006 में बर्ड फ्लू आउटब्रेक हुआ, 2010 में स्वाइन फ्लू हुआ, इंटीग्रेटेड सैंपल पेशेंट्स लिया है, पेशेंट सैंपल्स आर फर्स्ट टेस्टेड फॉर वेरियस स्ट्रेन्स ऑफ इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो मोटा मोटा तौर पर क्लीन रहे, अच्छा रहे, ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस में मत जाए, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, इम्यूनिटी अच्छी रखेगा, कसरत करे, अच्छा खाए। ठीक है, अगर आपको डाइट प्लान चाहिए तो मुझे कर सकते हो, मैं फ्री में तो नहीं दूंगा, ऑब्वियस है, सर्टन अमाउंट ले लूँगा, तो उसमें हो जाएगा आपका। चलिए, चांसेस आर लेस कि अभी कुछ मिलेगा।
ऑस्कर है क्या? गोल्डन ग्लोब्स देख सकते हो आप। गोल्डन ग्लोब्स किसको मिला? एमिली पेरेज, एमिलिया पेरेज, बेस्ट कॉमेडी, बेस्ट ड्रामा, ब्रूटलिस्ट। ये इतना पूछेंगे नहीं। ग्रेड 2 ग्रेड 3 एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। वो पूछा भी तो फिर इतना करते नहीं बैठना है हमें। हमें स्मार्ट बनना है। इतना सब सब रटते बैठोगे तो फिर गधे जैसी मेहनत होगी, और वो चांसेस भी कम है कि इसका रेशियो बहुत कम है पूछने का भी। अगर आया भी तो मैं स्किप कर दूंगा। इसरो स्कॉर्पियन स्पेस। नदी तरंगिनी becomes India's first CDSO for approved Ayurvedic medicine. विजन्स को मत फीड करा करिए, ठीक है? क्योंकि उसका जो शिट है ना वो बहुत डेंजरस रहता है, उससे अस्थमा तक हो सकता है। गुरु नानक दरबार। फॉग आ गया है। चलिए फिर, उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया रहेगा। मिलते हैं फिर। जय हिंद।